next topic is child psychology. We will see the meaning of child psychology here. Child psychology is the study of how children develop mentally, emotionally, socially, and physically from prenatal development through adolescence. It also observes how children interact with their parents, themselves, and the world. They try to understand how children reach developmental milestones such as walking and talking. It can help you to give highly important and valuable information on your child's mental, physical, cognitive, and emotional health as they grow. It is a specialized branch of developmental psychology, and a lot of specialized psychologists work as child psychologists, work to observe how a child feels and sees the world, reason things, interact with themselves, their parents, and the world at large. After observation, they use their expertise on children and adolescents to diagnose and help resolve issues that cause emotional or behavioral problems. It is also known as developmental psychology in the modern era. So, now the definitions of child psychology are, according to Jean Piaget, who is the father of child psychology, says child psychology is a branch of psychology under which the behavior of children and their inner minds are observed. The next definition is according to Lester D. Crow and Alice Crow. Child psychology is the scientific study of a child's development from the beginning of gestation to the early stages of adolescence. तो चाइल्ड साइकोलॉजी वो ब्रांच है साइकोलॉजी का जिसपे हम पढ़ते हैं बच्चों के ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर, उनके थॉट्स, इमोशंस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, मतलब जब से वो पैदा हुए हैं तब से लेकर एडोलसेंस पीरियड तक हम उनके बारे में इन सब चीजों को पढ़ते हैं अंडर चाइल्ड साइकोलॉजी. ये हमें हेल्प करता है समझने में कि कैसे बच्चे ग्रो करते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड इवन मॉरली, क्योंकि हर बच्चे अलग होते हैं एक दूसरे से. तो चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये बच्चे अलग बिहेव करते हैं और ये क्या सीखते हैं अलग अलग स्टेज पे अपने लाइफ के. So these all we study under child psychology. So now we study about nature of child psychology. First point is developmental psychology, studying general patterns of human development across the lifespan. तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि बच्चे कैसे ग्रो करते हैं और चेंज होते हैं बर्थ से लेके अडल्टहुड तक. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे पहले क्रॉल करना सीखते हैं, फिर वो वॉक करना सीखते हैं, देन वो रन करते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल थिंक, लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन. जैसे कि कोई बच्चा काउंटिंग सीखता है, पोएम को याद करता है, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो भी मेंटल रिलेटेड थिंग्स है वो सारे आते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर. नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी, investigating how individuals interact with and influence each other in social settings. सोशल साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि बच्चे कैसे इंटरैक्ट करना सीखते हैं दूसरे लोगों से, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, अपने फ्रेंड्स हो गए, इन सभी से वो कैसे इंटरैक्ट करना सीखते. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जैसे टॉयज शेयर करते हैं, लंच शेयर करते हैं अपना, ये सभी आता है सोशल साइकोलॉजी के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज न्यूरोसाइंस, एग्जामिनिंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर. न्यूरोसाइंस में हम पढ़ते हैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बारे. ये हमें बताता है कि कैसे ब्रेन कंट्रोल करता है एक बच्चे के थॉट को, इमोशन को, लर्निंग, मेमोरी और बिहेवियर. नाउ नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी, exploring how cultural factors shape children's development. एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कैसे कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स और सोसाइटी इन्फ्लुएंस करता है एक बच्चे के डेवलपमेंट को. जैसे कि बच्चे जो अलग देश में रहते हैं वो डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और वहीं का ट्रेडिशन को वो फॉलो करते हैं. So here we completed our nature of child psychology. Now, let's move on to next topic, which is scope of child psychology. The first point is understanding human development.
examining the process and factors that contribute to the physical, cognitive, and emotional changes individuals experience from conception to old age. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि चाइल्ड साइकोलॉजी हमें सिखाता है कि बच्चे कैसे ग्रो करते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली बर्थ से लेकर के अडल्टहुड तक. नाउ नेक्स्ट इज नेचर वर्सेस नर्चर. Exploring the interplay between genetic factors and environmental influences in shaping individual development. नेचर होता है क्वालिटीज जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे हाइट, आई कलर, इंटेलिजेंस. और नर्चर होता है फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, एजुकेशन और हमारे सराउंडिंग्स. ये दोनों मिलकर के एक चाइल्ड की पर्सनालिटी को बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. Recognizing how genetics, environment, and experiences shape unique developmental pathways. जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक बच्चा जो होता है वो अलग होता है एक दूसरे से. उनकी अलग एबिलिटीज, इंटरेस्ट, पर्सनालिटीज और लर्निंग स्पीड्स होती है. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो और वो ड्राइंग में ना अच्छा हो, बट दूसरा हो सकता है कि वो ड्राइंग में अच्छा हो बट वो स्पोर्ट्स में ना अच्छा हो. तो ये है उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग चैलेंज लाइक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज. चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चे जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. जैसे है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD. इसमें होता क्या है कि बच्चों को कम्युनिकेट करने में और सोशली लोगों से इंटरैक्ट करने में दिक्कत होती है. नेक्स्ट है ADHD, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसमें होता क्या है कि बच्चे को दिक्कत होती है कोई भी चीज में अटेंशन देने में, कोई भी चीज पे ध्यान देने में उनको दिक्कत होती है. वो एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही रहते हैं. और कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज भी होती हैं, जैसे कि रीडिंग प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को, राइटिंग प्रॉब्लम होते हैं. रीडिंग प्रॉब्लम में आ जाता है डायलेक्सिया. नेक्स्ट वन इज पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस. Evaluating the impact of different parenting styles and strategies on children's development. चाइल्ड साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कैसे अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स बच्चों के डेवलपमेंटल में इफेक्ट करते हैं. जैसे लविंग, सपोर्टिंग और अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल रहने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. यहाँ पे कुछ डायग्राम बने हैं जिस पर आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के. पहला है प्रमोट एफिशिएंट कम्युनिकेशन. तो इसका मतलब है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के दौरान पेरेंट्स और टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को अच्छे से समझ पाते हैं और उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. नेक्स्ट इज एनहेंस कॉग्निटिव ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन. इम्प्रूव करते हैं बच्चों की सोचने की क्षमता, मेमोरी, क्रिएटिविटी, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. थर्ड वन इज डेवलप्स चिल्ड्रन सोशली एंड इमोशनली. ये सिखाता है कि बच्चे कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करें, कैसे दोस्त बनाए अपने, कैसे कोऑपरेट करे दूसरों के साथ और कैसे एक सोसाइटी में अच्छे से बिहेव करे. नेक्स्ट इज प्रमोट्स टू इम्प्रूव पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन. ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में बाय इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड सपोर्ट. नेक्स्ट इज फ्यूचर सक्सेस. जब बच्चों की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाती हैं तो वो और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने फ्यूचर लाइफ में.